Mr. Mehta, the market hasn't really been able to get over last week's crash. So what's keeping the rally in check? Well, you know, the last week rally had come because of the expectations of the Prime Minister's package, which was to be announced around 20th of January. Well, the market is waiting for that, and till then it's not going to go for a reaction. So is it going to remain range bound, the kind of trading that we saw on Tuesday, or is it going to dip further southwards? I think it's going to stay where it is, and only the package, once it is announced, then the terms of the package would make a difference to the market. One way or the other? One way or the other, yes. Okay. Now, what's your medium to long-term outlook for the markets? Are we going to see the levels of 4,500 by December end that Mr. M.G. Damani, President of Stock Exchange Mumbai, has talked about? I feel that the market has already bottomed out, and we can definitely look forward to an upward trend in this year. My estimate is better than Mr. Damani. I think we should be touching about 5,000 5,000? by the year end 97. So the bull run is firmly in place. The bears can't trap the market anymore. You see, these bulls and bears theory, they go and work in a short term. Right. But for a small investor, it is the long term outlook which is important. Okay. And a short term investor would have to look to that. But is the small investor coming back to the market? Well, I would say in small numbers, yes, it has started coming back. To sell or to buy? To buy. Okay. Now, with the market so volatile, would you recommend an investor, a small guy, to come back to the market? If you have noticed the market trend, the volatility has been mainly in the forward scripts, A group. But I think a small investor should look for good companies in B1 group, which has not really shown much of a fast movement. So it is still steady, and you can pick up some good stocks at these prices. And which sectors and stocks look good to you at current valuations? I think on a broad front, probably if we look at some of the multinationals whose prices have come down, or some of the Indian top class companies like, let's say, Bajaj Auto, of course it has appreciated now, Hindustan Lever, BSES, Larsen. Now these are evergreen stocks. Okay. And it's much easier to get out also at a certain margins. So I think small investors should go and start accumulating in small quantities these good companies. But your advice will be to stay away from pivotals, the speculative stocks like Reliance, SBI, Tisco. Yes, I would at least a small investor should stay away. Right. And should he not also look at the B group shares? You've talked about B1, but what about those B2 stocks? you mean? Yeah. I would like him to stay in B1 because we have seen with our experience in the past that a small investor is not able to get out of the market if for any reason there is a downward trend. The B1 group companies are probably very active stocks, and they will have the first reaction when the market starts going upwards, and it will be very easy in case the investor changes his mind to sell those stocks in the market. So B1 will have the liquidity that B2 doesn't have. Yes. And right now. Okay, right now. Yes. And B1 will not have the kind of frenzied volatility that the A group or the Sensex shares or the pivotals have. Comparatively as a group, I mean, like some of the scripts and those may change, but otherwise in general, yes. Mr. Mehta, thank you very much. Thank you. इन्वेस्टर यानी आम निवेशक की तरफ से हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां? एक प्राइवेट इन्वेस्टर जानना चाहता है कि आज जो उथल पुथल है स्टॉक मार्केट में, उसमें वो क्या करे? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कॉर्पोरेट ब्यूरो के चीफ श्री विशाल बख्शी, स्टॉक ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर श्री विजय मेहता और पूर्व विशेष सचिव भारत सरकार श्री SV अय्यर। विशाल, सवाल तो आज सबकी जबान पे है कि जाएं तो जाएं कहां, लेकिन इसका पहला बुनियादी मुद्दा, क्या आज जो मार्केट में इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस शेक हो गई है, वो घबराया हुआ है, कंफ्यूज है, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि चाहे शॉर्ट टर्म में ही सही, स्मॉल इन्वेस्टमेंट का समय जैसे कि खत्म सा हुआ, रुका सा नजर आता है? देखिए, एकदम रुका है ये तो हम नहीं कह सकते। ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कम हो गया है,
ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में अगर आप लगाएं, आपको मालूम नहीं कि स्टॉक मार्केट और गिरेगा, अभी हालत स्टॉक मार्केट का सबके सामने है। आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, उसमें भी जो 64 यूटीआई की जो हालत हुई है वो सबके सामने है। तो उससे ही छोटे इन्वेस्टर को पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हुए डर लगता है। आपके पास रह क्या गया बैंक में भी इंटरेस्ट रेट पिछले 2 साल से फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी कम हुआ है, और अगर आप किसी भी अकाउंट में डालें, कैसे भी डालें, इंटरेस्ट रेट आपको वो नहीं मिलता जो आपको पहले मिलता। तो ये समय है, आप पहले बैठें, देखें कि आपका उद्देश्य क्या है पैसा इन्वेस्ट करने का। आपको सेफ रिटर्न चाहिए, आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में अभी भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही खत्म हो गया, कि कोई ऑप्शन नहीं है। यूटीआई को भी देखिए कि यूटीआई अभी भी अच्छे फंड्स में से है, अगर सबसे अच्छा नहीं भी हो फिर भी अच्छा तो है। तो ऑप्शन तो है, लेकिन एक जो माहौल है जिसको आप कह सकते हैं कि इस तरह की पैनिक का माहौल है, वो भी कुछ ओवर रिएक्ट किया गया है। इतना पैनिक नहीं है जितना कहा जा रहा है कि कहाँ जाए। ये मुद्दे पर भी आपको लगता है कि इंडिया का ओवर रिएक्शन हो गया या एक पॉलिटिकल ओवर रिएक्शन हो गया? बहुत हुआ है। पॉलिटिकल फुटबॉल तो यूटीआई को लेकर खेला भी जा रहा है, और मीडिया ने भी कुछ ओवर रिएक्ट किया है। वही यूटीआई है जिसने पैसा पहले भी लगाया हुआ था। जो नुकसान उनको आज हो रहे हैं पहले भी हुए हैं, हिस्ट्री में भी हुए हैं। 98 में भी सरकार ने यूटीआई को बेल आउट किया था। जो भी पैसा लगाता है किसी से भी गलती हो सकती है, कुछ गलतियां जानकर हुई हैं, उन पर आप ठीक है, आप यूटीआई के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। लेकिन अगर मैं भी पैसा लगाऊं, आप लगाएं, हम किसी से भी गलती हो सकती है पैसे को इन्वेस्ट करते हुए। तो ये कहना कि यूटीआई में पैसा नहीं लगाए, ये मैं नहीं इस बात को मानता। और कितनी बड़ी गलती है, मतलब कितनी एक टोटल एवरेज मैग्नीट्यूड में कितनी बड़ी गलती है यूटीआई की, उसका प्रोपोर्शन क्या है? देखिए, यूटीआई से गलती हुई कुछ कंपनियों के केस में। हमने कुछ स्टडी किया, उसमें पाया कि 57,000 करोड़ रुपए जो यूटीआई का मार्केट में लगा हुआ है, उसमें जो डेड इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि शायद पैसा कभी वापस नहीं आएगा, मुश्किल से 100 करोड़ के लगभग होगा। बाकी जो यूटीआई को बहुत नुकसान हुआ है वो पूरी स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है। वो स्टॉक मार्केट अमेरिका में भी गिरी है। अमेरिका में भी दाम कुछ शेयरों की जो $100 पर शेयर बिकता था, आज एक का भी नहीं बिकता है। तो ये कहना कि यूटीआई का सिर्फ बैड मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, या यूटीआई मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, ये भी ठीक नहीं है। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट गिरता है, तो ऊपर जाना और नीचे आना एक मार्केट का माहौल है। अगर आप इस मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए, रोज आपको मार्केट की पल्स सुबह से लेकर शाम तक महसूस होती है, आप उस पल्स के ही सहारे जीते हैं, और वो पल्स आपके ही सहारे चलती है, मतलब आप और आपके जैसे दूसरे स्टॉक ब्रोकर के सहारे। आज जो स्मॉल इन्वेस्टर है, आम निवेशक है, उसके मन में कितना पैनिक है, उसके बिहेवियर में क्या परिवर्तन आया है, और स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, स्टॉक मार्केट का उसके ऊपर क्या असर पड़ा है? देखिए, जो स्मॉल इन्वेस्टर ने पिछले 2 साल में 99 से अगर उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो अब टू 2000 उसमें स्टॉक मार्केट की उसकी रिटर्न बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद में स्टॉक मार्केट में उसका लालच बढ़ता चला गया, और ये जो उसका अपना लालच इतना बढ़ गया कि वो लुकिंग एट अ रिटर्न ऑफ अबाउट 3 to 4% अ डे। अब इस तरीके की रिटर्न नेचुरली एक कोई भी मार्केट लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं दे सकती। जैसा कि विशाल ने बोला कि उसके बाद में वर्ल्ड ओवर एक रिएक्शन हुआ, और उसके कारण जब इंडिया में मार्केट्स गिरी और जो कुछ मार्केट के ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर भी इनके छींटे पड़े, और उनको पकड़ने के कारण जो मार्केट में टेक्निकल फॉल हुआ उसमें इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो जहां तक शेयर बाजार की बात है, आज इन्वेस्टर थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से फरवरी 2000 की जो मार्केट थी वो भी एक अनरियलिस्टिक लेवल पे थी, उसी तरीके से अगस्त 2001 की जो मार्केट है ये भी अनरियलिस्टिक है। इस समय जो शेयर कंपनीज के मिल रहे हैं वो बहुत ही, उनकी जो पी है बहुत कम है, और वो प्राइस अर्निंग रेशियो वो बहुत कम है, और जो मापदंड है शेयर खरीदने का ब्रॉडली स्पीकिंग, तो उसके कारण से अब ये जो समय है इसके अंदर अब ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट अपनी ज्यादा थोड़ी बहुत और स्लिप हो सकती है,
लेकिन अगर आप देखिए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जिन कंपनियों के अच्छे आए हैं उनके अंदर एप्रिसिएशन जो है, और लगता है कि अब जो फ्री फॉल था मार्केट का वो फॉर द टाइम बीइंग इट इज अरेस्टेड। थोड़ा बहुत और माइनर सा करेक्शन हो रहा हो सकता है, लेकिन मार्केट इसी लेवल पे तो ज्यादा देर घूम सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नीचे जाए ऐसा मेरा मानना नहीं है। और आने वाले समय में आपको लगता है कि ऊपर जाएगी? मुझे लगता है कि अब ये जो जैसे मैंने बोला कि ऊपर कब जाएगी उसके बारे में मैं अभी इस समय कुछ ऐसा पूरे जोर से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट और नीचे नहीं जाएगी ऐसा जितने भी इस समय के इंडिकेटर्स हैं उनसे बिल्कुल क्लियर लगता है कि अभी इससे नीचे अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं जाने वाले। भैया साहब, जैसा कि बाकी इन्वेस्टर्स के बारे में दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक उनके अंदर पैनिक भी आया, उस घबराहट की वजह से मार्केट में कमी भी आई, मंदी भी आई। आप भी एक इन्वेस्टर हैं और आपको रिटायर किए 10 साल हो गए हैं। हालांकि इस 10 साल में आप रिटायर नहीं किए, आप काफी एक्टिव रहे हैं, लेकिन आप एक एक्टिव इन्वेस्टर भी हैं। आपके मन पर क्या असर हुआ इस स्टॉक मार्केट की उथल पुथल का? ख्याल ये है कि अभी आप ऐसी हालत नहीं हुई है कि लोगों को घबराना चाहिए या इन्वेस्टमेंट बंद करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का माहौल ही खत्म हो गया। जैसे विचार ने कहा है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट योर इन्वेस्टमेंट टू डू। आपको फिक्सेड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फिक्सेड इनकम चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट से, देयर आर स्टिल एवेन्यूज अवेलेबल। आप फिक्सेड डिपॉजिट कर सकते हैं, एज मैनेजर सेइंग दैट companies are doing very well. I am sure those share prices will be going up. If you are a careful investor and you are intelligent enough, आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। If you are a taxpayer, there are tax free avenues are also available. उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप मार्जिनल रेट पे इंटरेस्ट टैक्स पे कर रहे हैं तो आप रिजर्व बैंक बॉन्ड जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ है, दो इंटरेस्ट रेट हैज कम डाउन, even then it is still attractive. So avenues are still available. ऐसी हालत अभी नहीं हुई है कि इन्वेस्टमेंट बंद भी कर ले या खर्रा हो जाए, क्या पैसे की पैसे अपने पास विशाल, आपने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट दर कम हुई है, पहले के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट दर लगातार कम हो रही है, बैंक्स के अंदर भी कम हो रही है। पीपीएफ के अंदर भी 12% से घट के अब 9.5%, यानी 20% पीपीएफ और पीएफ में इंटरेस्ट कम हो गई। या आरबीआई बॉन्ड में 10% से घट के 8%, हालांकि टैक्स फ्री, लेकिन 15% की कमी। बैंक में भी लगातार इस इंटरेस्ट रेट का कम होना, इसका पहली चीज तो कारण क्या है, और दूसरी चीज क्या ये विदेशों में भी इसी तरीके से कम हो रही है? देखिए, ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट का कम होना उसका डायरेक्ट लिंक है जिस रेट पर बैंक इंडस्ट्री को पैसा देता है। अब अगर इंडियन इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव होना है ग्लोबल मार्केट में, तो उनको आप बैंकों से अगर पैसा बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा तो इंडियन इंडस्ट्री फॉरेन कंपनीज के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगी। एक तो एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं रह पाएगी, दूसरी बात ये रहेगी कि आप अपनी मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद अब इंपोर्ट बहुत आसान हो गया, बाहर से आयात बहुत ही आसान हो गया। तो आपकी कॉस्ट जो है, जो आप जिस प्राइस पर आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे वो आपकी अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी। आपके यहाँ वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ओवरहेड वैसे ही ज़्यादा है। तो उसकी वजह से इंडस्ट्री की ये डिमांड थी बहुत टाइम से कि आप हमारा इंटरेस्ट रेट कम करिए, जिस पर हम बैंकों से लोन लेते हैं। दूसरी बात यह कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी समय से कंट्रोल में है, 5%, 5.5%, 6%, उसके बीच में तो 2 तक भी चले गए थे, 2.2 तक चले गए। तो हमारा वो काफी कंट्रोल में है। कम इन्फ्लेशन रेट हो और हाई लैंडिंग रेट हो जिस पर बैंक लोन दे रहे हैं, वो भी एक हेल्दी बात नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट बैंकों के इसीलिए कम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और बाहर आप देखिए तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, पहले से हमसे बहुत ही कम है। जापान में 2-2.5% है, अमेरिका में 4.5%, 4%। तो हम जिनके साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिकली, हम जहां भी देखें, अगर हम अपने आप को बड़े देशों के साथ देखें जहां पर काफी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो हमारे इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है।
इंटरेस्ट रेट तो कम होने होंगे। लेकिन अब लोगों के सामने एक सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, आप एक फिक्स्ड रिटर्न के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, सिक्योरिटी है, लेकिन रिटर्न भी फिक्स्ड है। दूसरी ये है कि अगर आप ऑप्शन ये है कि आप एक स्टॉक मार्केट में खेलना चाहते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा समझदार प्लेयर के माध्यम से खेलना चाहते हैं, आप मतलब सेकेंडरी प्लेयर हैं और किसी से कहीं कि आप हमारा पैसा लगाइए, और तीसरी की बात कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहें। आपने ये भी कहा कि लालच हमारे इन्वेस्टर्स के अंदर ही है। अब एक तरफ देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर भी ये, हमारे समाज के अंदर भी ये बात है कि हम बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं। तो अब आप कहिएगा कि आप पैसा फिक्स जगह लगा दीजिए, उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगी और आने वाले समय में इन्फ्लेशन की वजह से फिर इसका पैसा भी आपका मतलब घिस के कम हो जाएगा। क्या चीज जीतेगी लोगों के मन का, वो लालच कि हम ज्यादा पैसा कमाएं जल्दी, यानी कि वो गैम्बल करेंगे मार्केट में, या लोग सिक्योरिटी जाएंगे क्योंकि वो घबरा गए हैं? देखिए, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने का एक रूल तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, तो ये है कि रिस्क और रिटर्न ये दोनों में उल्टा चलते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो रिटर्न ज्यादा होगी, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद अ वेरी वेरी डिसेंट काइंड ऑफ फिक्स्ड रिटर्न। इंडिया के अंदर जो आज का समय है, मुझे लगता है कि जो एक आम निवेशक है, अगर उसको अपना डिसाइड करना है और वो ये भी चाहता है कि वो इन्फ्लेशन से बेटर कमाए, तो उसको बैलेंस्ड वे नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों में से एक तरफ ना जाए, या तो अपना जितना भी पैसा है उसमें कुछ प्रतिशत जो उसका है वो फिक्स रिटर्न सिक्योरिटी में लगाए, ताकि वहां से उसकी रेगुलर इनकम बनी हुई है, और कुछ पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में लगाए, जिसमें एक्सपर्ट बैठ के उसके बिहाफ के ऊपर शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा जो पैसा है, लेट्स से 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसाइड, बिकॉज 80% में ही सेफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है, जो एक आम निवेशक को अपने मन में बिठानी पड़ेगी, कि जहां पर भी वो पैसा लगाएगा उसको पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज किसी को भी पैसा लगा गया, जैसे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको मार्केट का ध्यान रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है, NAV जिसको बोलते हैं, वो हमेशा उसको देखनी पड़ेगी, ताकि अगर वो बाहर भी निकलना चाहे तो जल्दी से निकल आए। और इस तरीके से जैसे यूनिट ट्रस्ट के अंदर 64 स्कीम में भी जो लोग बहुत अलर्ट थे वो बहुत पहले भी निकल आए, और वो भी एक पार्लियामेंट में ऐसा प्रश्न उठा कि पहले वो सारे लोग कैसे निकल आए। तो जहां पे आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आप बिल्कुल सावधानी से लगाइए। जो प्रिंसिपल है बायर दीजिए, तो आप अपनी अच्छी तरीके से लगाइए, सोच समझ के लगाइए, अच्छी कंपनियों में लगाइए। मार्केट के अंदर जैसे रूमर चलती, जो लास्ट ईयर चलती रही, तो लोगों ने जो कंपनी अच्छी भी नहीं थी उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। तो वो सब नहीं करना है। आप अच्छी सॉलिड कंपनी में आप पैसा लगाइए, आप देखेंगे कि आपकी रिटर्न अच्छी आ जाएगी। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, पहले एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं सौरभ। वेलकम बैक टू निशान। विजय मेहता, जो आज जो 64 के होल्डर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो बाहर निकलें